হাওড়া জেলার নাজিরগঞ্জ শীতলা তলার বাণীপুর পঞ্চায়েত 2-এর এক ছোট ব্যবসায়ী শিবনাথ পোদ্দারের জীবন এক বড় সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। তার কথাটি শুনলে আপনার মনে প্রশ্ন জাগবে, কিভাবে একজন সাধারণ মানুষ স্থানীয় ক্ষমতার অত্যাচারের শিকার হতে পারে। শিবনাথ বাবু ছোটখাটো ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করেন, কিন্তু স্থানীয় কিছু লোক তার কাছ থেকে টাকা দাবি করতে শুরু করেন বলে অভিযোগ। তিনি টাকা দিতে অস্বীকার করলে তাকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয় এবং একদিনের জন্য পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হয়। এই ঘটনার পর শিবনাথ বাবু 7 মাস ধরে আইনি জটিলতার সম্মুখীন হন। তিনি তার জমি দেখিয়ে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছিলেন এবং তারপরই তার ব্যবসা এবং জীবন বিপর্যস্ত হয়ে যায়। আশার আলো দেখতে তিনি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। হাইকোর্ট তার পক্ষে রায় দিয়ে মামলাটি খারিজ করার নির্দেশ দেয়, কিন্তু শিবনাথ বাবুর মনে আশঙ্কা রয়েই গেছে। তিনি মনে করছেন এর পিছনে কোনো মাফিয়া বা প্রভাবশালী ব্যক্তির হাত রয়েছে। হাইকোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও তিনি আবারও কোনো সমস্যার সম্মুখীন হবেন কিনা সেটা নিয়ে তার মনে উদ্বেগ রয়ে গেছে। তিনি কি আবারও মিথ্যা মামলায় ফেঁসে যাওয়ার ষড়যন্ত্রের শিকার হবেন? नमस्कार सर, मेरा नाम शिवनाथ पोद्दार राजगंज शीतला तल्ला के निवासी पंचायत बानीपुर 2 के रहने वाले हम हैं और हम यहाँ एक ज़मीन कीन के अपना घर बना रहे थे। घर बनाने के लिए मेरे पास सब कागज़ पत्तर सरकारी तरफ से हमारा सब कुछ रेडी होने के बावजूद भी हमको थाना से लेके सब परेशान कर रहे थे। सब पार्टी वाले बाबू लोग के पास गए, सबके पास पैर पकड़े हैं और कोई हमारा हेल्प नहीं मिला। तो लास्ट में हम बड़ा बाबू भी हमको एक दिन ले जा कर के लकअप किया, पकड़ के ले गया, बोला तुम सरकारी ज़मीन में घर बनाते हो। हम बोले सर जी हमारे पास सब कागज़ है, आप कागज़ देखिए। कोई नहीं सुने और हमको लकअप कर दिए। फिर हम बेल होके आकर के हम देखे और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तो हम हाई कोर्ट से 27 तारीख को हमको जो है सबसे बरी कर दिए और मेरा जो है परमिशन दे दिए कि आप घर बनाइए, आपका सब कुछ कागज़ ओके है। इसके लिए हम सभी दल से और सभी सरकारों से निवेदन करते हैं जो हमको और कोई परेशान ना करे और हम जो है अपना घर बना सके। भय तो आछे जे आबार की होते पारे ना होते पारे, एटाও भय आछे, डर तो है, क्योंकि हम आज 6-7 महीना से हम परेशान में हैं, परेशानी देख रहे हैं। जिसके पास जाते हैं कोई सुनता नहीं है, कोई सुनता नहीं। लास्ट में हमको हाई कोर्ट जाना पड़ा। हम गरीब आदमी मेहनत करके मजदूरी कर करके बैंक से लोन लेके हम घर बनाने रहे हैं, फिर भी हमको परेशानी क्यों होता है हम गरीब आदमी के लिए। हम सरकार से भी निवेदन करते हैं जो कम से कम इस चीज़ को हमको देख करके भी कम से कम उचित विचार कर करके ऐसा न हो जो परेशान में हम लोग गरीब आदमी पड़े। हमारे पास क्षमता था, किसी तरह हम हाई कोर्ट गए। जिनके पास क्षमता वो भी नहीं है जाने का, वो क्या करेंगे, किसके दरवाजे पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कोई सुनने वाले नहीं है। हम सर 2019 में ज़मीन किने थे, उसके बाद मेरे पास पैसा नहीं था, साधना नहीं था। हम बैंक से लोन कर करके जब मेरा पैसा हुआ तो हम घर बनाने का कोशिश किए और तब जा कर के हमारे ऊपर अत्याचार अन्याय करने लगे सब लोग। जुलाई मास 6 तारीखे 6 जुलाइए अरेस्ट করেছিল। 7 জুলাইয়ে আমি কোর্ট থেকে জামিন পেলাম। 3 কাঠা 3 ছটাক জমি আছে। আচ্ছা, আপনি কি অ্যারেস্টের এগেইনস্টে মানহানির মামলা কিছু করবেন? সেটা এখনো আমি ওটা চিন্তা ভাবনা নিইনি। আপনি কি চাইছেন? এখন আমি এইটাই চাইছি যে हम अपना घर बना करके शांति से रहना चाहते हैं। আপনি তো কোর্টের অর্ডার পেয়েছেন। হ্যাঁ স্যার। তারপরে কাজ করেছেন কি? না এখনো করিনি, মিস্ত্রি দেখা হচ্ছে, মিস্ত্রি পেলে কাজ আরম্ভ করব। কোর্টের পেপার আপনি থানাতে দেখিয়েছেন? কোর্টের পেপার না, কোর্টের পেপার থানাতে এখন অর্ডারটা দেখান।
পুলিশ ডাইরেক্ট এসে আমার সামনে দোকান আছে, ওই দোকান থেকে আমাকে তুলে নিয়ে যায়। বললো তো যে ওই তুমি সরকারি জমিতে ঘর করছো। আমি বললাম না স্যার, আমার তো সব কাগজপত্র ওকে আছে, আমার থানাতেও 1 কপি জমা আছে। তার সত্ত্বেও আমাকে তুলে নিয়ে গিয়ে কেস দিল। আপনি জিজ্ঞাসা করেননি থানায় অভিযোগ কে জানিয়েছিল? ওর কারোর অভিযোগের ভিত্তিতে তো পুলিশ তুলতে পারে, আপনি জিজ্ঞাসা করেননি? না স্যার, আমি জিজ্ঞেসও করিনি, আমার অত ক্ষমতা নেই যে বড়োবাবুর সঙ্গে আমি কথা বলতে পারবো। আচ্ছা, মানে কারোর অভিযোগে ছাড়াই আপনাকে তুলে নিয়েছিল? হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো কোর্ট বলছে। আচ্ছা, তারপরে আপনাকে শুধুমাত্র হ্যারেস হলে বলে আমি মনে করছি। এমন হ্যারাসমেন্ট হয়েছি যে এই টেনশন চিন্তায় আমার ফ্যামিলির সুগারের রোগী হয়ে গেল, আমি সুগারের রোগী হয়ে গেছি আজ। তারপর আমার সব জিনিসপত্র যা ছিল এখানে কাজ বন্ধ হওয়ার পর সব চুরি হয়ে গেল। राजगंज शीतला तल्ला लाइब्रेरी मोड़ के पास में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ज़मीन का मामला आया हुआ है सामने, जहाँ पर लोगों ने ज़मीन खरीदी थी और जिसने ज़मीन बेचा वो भी आकर के यहाँ पर दावे के साथ कहा भी जा रहा है कि ये ज़मीन को है बेचा गया था। और इसके बाद में यहाँ पर पुलिस प्रशासन आकर के हस्तक्षेप आरंभ कर दिया और कई दिनों तक जो यहाँ के पोद्दार जी हैं उनको, शिवनाथ पोद्दार जी को परेशान किया गया और पुलिस उनको लगातार हरासमेंट करते आई है। और उसी को लेकर के उन्होंने हाई कोर्ट का जब दरवाज़ा खटकाया तो हाई कोर्ट ने इस एक आदेश भी जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया कि वो अपने लैंड पर काम कर सकते हैं। और इसी का मामला को लेकर के आप देख सकते हैं किस प्रकार का करोड़ों का जो लोन लेकर के लोग अपनी घर प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, उन लोगों को किस प्रकार से पुलिस प्रशासन परेशान कर रही है। और जो स्थानीय लोकल नेता हैं उनका कुछ ना कुछ इसमें जो अनुमान लगाया जा रहा है, उनका भी कुछ ना कुछ दबाव इस पर जरूर पड़ा हुआ है, जिसके कारण ये अवस्था घटी है। हावड़ा से नरेंद्र दुबे की रिपोर्ट।